Good morning students, how are you? Fine. Today we will discuss exercise 8.2. In this exercise we will discuss the percentage. The percentage is the another method to compare the quantities. So we can write percentage is another way of compare comparing quantities. Okay. जैसे कि हम एग्जाम के अंदर दो स्टूडेंट के मार्क्स को देख के कंपैरिजन कर सकते हैं, उसी तरह उनके परसेंटेज को देख के भी कंपैरिजन कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज दिस परसेंटेज? मतलब परसेंटेज इज द फ्रैक्शन with denominator हंड्रेड, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 100 हो. वी कैन कन्वर्ट एनी परसेंटेज and it is represented by any number with sign percentage. This is the sign of percentage. So we can convert any percentage to fraction and vice versa. It means fraction to percentage. It means we can convert percentage to any fraction and fraction to percentage. Let us discuss it. Here percentage to fraction. How to convert it? 1% means 1 upon 100. परसेंट मीन्स 1 अपॉन 100. इसका जो साइन है इसका मतलब ही 1 अपॉन 100 होता है. देन 2% मीन्स 2 अपॉन 100. 5% मीन्स 5 अपॉन 100. इफ वी कैन मिनिमाइज इट तो इसे सॉल्व भी आप कर सकते हो. सो 1 अपॉन 20. 10% मीन्स 10 अपॉन 100. 1 अपॉन 10. 20% means 20 upon 100. 1 upon 5. 25% means 25 upon 100. 1 by 4. आपसे कोई कहे कि किसी क्वांटिटी का 10% हमें फाइंड करना है, सो इट मीन्स हमें उस क्वांटिटी का 1/10 ही फाइंड करना है. एक्चुअल में देखा जाए तो अगर कोई कहे हमें you have to find 25% of any number, any quantity, it means we have to find 1/4 of that quantity. Okay, so 50% means 50 upon 100. It is equal to 1 by 2. 75% means it is equal to 75 upon 100. 3 by 4. Next one is 100%. अब यहां ध्यान रखना कि 100% मीन्स होता है 1 की क्वांटिटी कंप्लीट नंबर आ गया है, होल इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है हमारा 100%, किसी भी क्वांटिटी का कंप्लीट. नाउ दीज आर द फ्रैक्शन, दीज आर द पार्ट. किसी भी क्वांटिटी का 100th पार्ट, 150th पार्ट, 120th पार्ट, दिस क्वांटिटी इज कंप्लीट 1. आपसे क्या दिया जाए 200%. इट मींस वी हैव टू फाइंड द ट्वाइस दैट नंबर, 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर. So this is 200%. 300% means 3 times. 300 upon 100 means it's a 3. Number is 3, and then so on. So we can convert percentage to the fraction by this way. आप इनको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिले. Now how to convert fraction to the percentage? Now fraction to percentage. Let us discuss 1 by 2. कोई फ्रैक्शन है, इसे हमें परसेंटेज में लिखना है. सो 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 100%. सो वी हैव टू ऐड दिस क्वांटिटी 100% टू एवरी फ्रैक्शन. देन वी हैव टू सॉल्व इट
we will get our result. 1/2 of 100% means 1/2 of 100. अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 1/2 इंटू 100 करेंगे तो 50, तो इसका सिंप्लीफाई करके हम सीधा लिख देंगे 50%. 3/4 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, तो 3/4 इंटू 100%. नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस साइन अलॉन्ग विद 100, तो दोनों साइन आ गए, इसे सिंप्लीफाई कीजिए. 4 1 जा 4, 4 से कैंसिल कीजिए 25 पे, 25 3 जा 75%. Now we can convert any fraction to percentage. If you have been asked 14 upon 100 into percentage, अब इसका इसका डिनोमिनेटर क्या है, 100 है, we can directly write here 14%. But if you want to solve by the same method, then you can write 14 upon 100 into 100%. So it becomes 14%. Clear? Similarly 13 upon 50 given है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 13 upon 50 into 100, so it becomes percentage. It becomes 52 is 100, 13 to 26%. So now it can be converted easily in the percentage. Next 8 upon 20, 8 upon 20 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 8 upon 20 into 100%. So value becomes, now the new value becomes 25 is 100, 40%. Clear? So it is now the 40%. Similarly, if you are being asked to convert 20 upon 12% to the percentage, it's I know it's more than the 100% because यहाँ पे numerator denominator से ज़्यादा है, तो let us check it. So 20 upon 12 into 100%. मेथड सेम रहेगा, इसे सिंप्लीफाई करना हो 4 3 जा 4 से 25, 500 upon 3%. इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 2/3%. So now you can convert any fraction to the percentage just by introducing 100%. By multiplying the given fraction to the 100%, we get our result. Okay. Now let us discuss how to convert decimal to the percentage. Let us take an example, 0.75. How much percentage it is, equal to what percent? तो 0.75 को सेम फ्रैक्शन की तरह करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई एंड देन साइन ऑफ परसेंटेज. 0.75 into 100 is equal to what? 75, sign of percentage. So it becomes 75%. Similarly 0.09 is equal to what? 0.09 into 100%. नाउ इन दिस केस जब आपके पास डेसिमल पोर्शन हो, तो अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं. 9 अपॉन, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 9 अपॉन 100, डेसिमल की जगह 1, देन हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 2 डिजिट्स, देन इंट्रोड्यूस 2 zeros, देन मल्टीप्लाई बाय 100%. 100 से 100 कैंसिल, 9%. क्लियर? तो आप इसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व करना चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. Next one is 0.02 is what percentage? Let us check. 0.02 into 100%, so 2 upon 100 into 100%, it is equal to 2%. So now decimal portion can also be converted into percentage. There are the several examples where we are using this concept. For example, in an atmosphere, 1 gram of air contain 0.75 grams of nitrogen.
So what is the percentage of the nitrogen in the air? 0.58 लगा लीजिए आप. So what percentage of the nitrogen in the air? Can you calculate it? So 0.78 is equal to what percentage? It is consist of in the 1 gram, respect of 1 gram. So 0.78 multiplied by 100 percentage. So 78 upon 100 into 100 percentage, it is equal to 78 percentage. It will be equal to 78 percentage. It's just a question and it is just the explanation of this question. So there are various examples. Now हमने डिस्कस किया था पहले, this is the any figure, this complete is known as the 100%. If we divide it into some parts, equal parts, अगर इसको हमने 4 equal parts में हमने break कर दिया है, तो we can now convert every part in the fraction. हर part को fraction में कर सकते हैं. हमने देखा था एक बार कि what part of the fraction or what part of the figure is shaded if all the parts are of equal shape, equal size. So here the 1/4 part is the shaded. Okay, now always remember the complete will be complete represents to 100%. ये कंप्लीट जो डायग्राम होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 100% को. अब इसका 1/4 पार्ट शेडेड है, तो शेडेड पोर्शन कितना परसेंट है, कितना परसेंट शेडेड पोर्शन है, परसेंटेज दैट इज शेडेड इज इक्वल टू 1/4 है शेडेड, सो इनटू में 100%, सो इट इज इक्वल टू 25%. सो जो हमने यहां से हम फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कितना पोर्शन फ्रैक्शन होता है, तो उसी फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट यहां पर परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. बट रिमेंबर दिस कंप्लीट डायग्राम विल रिप्रेजेंट 100%. यहां पर कंप्लीट डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा, 100%. फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल, दिस इज द सर्कल एंड देयर आर इक्वल 8 parts, 1 2 3 4 and 4 on other side. So if we have shaded 3 part out of 8, then what percentage of the portions are complete circle are shaded? Then percentage of shaded portions, shaded area, circle complete diagram कितना पोर्शन होगा, 3 पार्ट है आउट ऑफ 8. टोटल कितने पार्ट हैं इसके अंदर, 8. 3 out of 8 multiply by 100%. So answer will be yours. 4 2s are 4 से 25. So 75 upon 2%. On solving it we get 37:1/2%. Where portion are shaded. Okay. Now you can solve such a questions. Now let us discuss some questions. Solve these questions. 35% plus what percent is equal to 100%? Now how can we solve this question? We can solve by subtracting this quantity. 100 minus 35 is equal to what? 65. Okay, so here what does it come? 65%. What comes here? 65%. 64 plus 20 plus what is equal to 100? 64 plus 20 is equal to 84 plus 16 is equal to 100. 45 is equal to 100% minus what? Minus 55%. So यहां से आप इस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशन की तरह है. अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे on the basis of these. If 35% of the students in a class have a bicycle, then what percentage of the student
don't have the bicycle। इस क्वेश्चन को अब इससे रिलेटेड करो। Now relate the same। 35% of the student have the bicycle, 35% have bicycle। What percent of the student don't have the bicycle? जो remaining है वो कितने होंगे? टोटल होता है 100, तो 100 minus 35 is equal to 65। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Number of the students who don't have bicycle is equal to 100% minus 35%, and it is equal to 65%। Now similarly, we have a basket of fruits having apple, oranges and mangoes. If 64% are apples now and 20% are oranges, find the remaining क्या है हमारे पास? Mangoes, percentage of mangoes। The question number 3 relate to question part number 2। 64% are apples, 20% are oranges and the left were mangoes। So यहाँ पर हम क्या कहेंगे? Percentage of mangoes is equal to 100% minus परसेंटेज कितनी है एप्पल की? 64% minus 20%। So 100% minus 84% will be equal to 16%। So answer will be 16%। तो इन सारे क्वेश्चंस को रिलेट करके आपको बताया गया है। Now we will start our exercise। Now we will start question number 1। Convert the given fraction to the percentage। One more thing, percentage में दो वर्ड होते हैं, परसेंट। पर मतलब 1/100 मतलब 100। सो 1/100 परसेंट का मतलब हो गया 1/100 या आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आउट ऑफ 100। कोई क्वांटिटी है वो 100 में से कितना पोर्शन है इज नॉन एज परसेंटेज। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। 1/8 इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज? आपको मैंने बताया था फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1/8 इंटू 100 परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और साइन लगा दीजिए परसेंटेज का। 4 2 जा 8, 4 से डिवाइड कीजिए 25, सो 25/2 परसेंटेज। सिमिलरली नेक्स्ट वन 4/5/4 100 परसेंटेज। इसको कैंसिल कीजिए 25 पे, सो 125 परसेंटेज। बिकॉज इसकी वैल्यू भी 1 मोर देन 1 जाती है तो ये भी 100 से ऊपर ही जाएगा। 3/40, 3/40 को सॉल्व करेंगे इट इज इक्वल टू 3/40 इंटू 100 परसेंटेज। 0 से 0, 4 2 जा 2 2 जा एंड 2 5 जा, तो 15/2 परसेंटेज। ये हम बोल सकते हैं 7:1/2 परसेंटेज। क्लियर? नाउ इट इज इक्वल टू 2/7 इज इक्वल टू 2/7 इंटू में 100 परसेंटेज, सो 200/7 परसेंटेज। इसे भी आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो फ्रैक्शन में लिख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स टू द परसेंटेज। इन डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। सिंपल है, इसको भी हम कैसे करेंगे? सेम मेथड से करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 देन इंट्रोड्यूस परसेंटेज साइन। 65 को हम 0.65 को क्या लिखेंगे? 65/100 परसेंटेज। सॉल्व करेंगे 100 से 100 कैंसिल, वी विल गेट 65 परसेंटेज। इन द नेक्स्ट वन पार्ट नंबर बी 2.1 इंटू 100 परसेंटेज। 2.1 का मतलब है 2.1 यानी 21/100, 21/10 इंटू 100 परसेंटेज। 1 0 से 0 कैंसिल, सो इट बिकम्स 210 परसेंटेज। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन मोर देन 1 जा रहा है तो ये भी हमारा मोर देन 100% होगा। नाउ 0.02 इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज? तो 0.02 इंटू 100 परसेंटेज इट इज इक्वल टू 2/100 इंटू 100 परसेंटेज। 100 से 100 कैंसिल, वी गेट 2 परसेंटेज। 12/35 परसेंटेज, so 12.35 into 100 percentage, it is equal to
1235 upon 100 into 100 percentage. So it will be equal to 1235 percentage. Okay, these are the question number 1 and question number 2. Now question number 3. Estimate what part of the figure is colored and find the percentage of each. Now here we can see there are the 4 parts, and out of the 4 parts, 1 part is colored. So required fraction is what? Fraction is equal to 1 by 4. Here the fraction is equal to what? 3 out of 5. So 3 by 5. And what is the fraction of this? 3 out of 8. Okay. So now the percentage portion of percentage of fraction. Fraction को percentage में convert कीजिए. Percent of shaded portion. Colored portion बोलो आप इसको. वन बाई फोर इंटू 100%. सो इसको कैंसिल करेंगे, व्हाट विल वी गेट? 25%. सिमिलरली परसेंट कलर्ड पार्ट, इसके अंदर कितना कलर्ड पार्ट होगा? 3 बाई 5 इंटू 100. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 20 पे कैंसिल होगा, इंटू परसेंटेज. सो 3 into 20, 60%. Similarly, last one, part number 3, percent colored part. Is equal to 3 by 8 into 100%. 4 2s are 8, 4 से 25. 25 3s are 75.2%. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 37:1/2%. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड 15% ऑफ 250. 15% ऑफ 250. सो इट इज इक्वल टू 15%. परसेंट का मीन्स होता है पर 100. सो 15 अपॉन 100. ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई. ऑफ का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई. देन 250. How can we solve this? 0 से 0 cancel. 5 2s are 5 5s are. Then 15 5s are 75 upon 2. So its answer will be 37:1/2. अब यहाँ पर परसेंटेज का साइन आपको नहीं लगाना है. जो यूनिट यहाँ लिखी गई है वो यूनिट यहाँ लिखी है. यहाँ कोई यूनिट नहीं है तो आप भी यहाँ कोई यूनिट मत लिखिए. इन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या किया है? गिवन है 1% ऑफ, यानी कि 1 अपॉन 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. आवर, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट. कितने सेकंड होते हैं? यू कैन से 3600 सेकेंड्स. सो आप इसको अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हो देन वी कैन फाइंड 20 से 20 कैंसिल, 36 second. So 1% of hour is equal to 36 second. यहां पर हमने क्या यूनिट यूज की है? 1 hour is equal to 3600 seconds. एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 seconds. So we use this unit. और अगर आप इसे as it is 100 में लिखना चाहें तो you can also solve this, but you have to write in another method 1 upon 100 into 1 hour. So it means it is equal to 1 by 100 of hour. Okay, well I think so this one will be the easier and you should do by this method. Okay.
बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई भी एक मेथड इनमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नाउ 20% ऑफ रुपीज 2500, so it will be equal to 20%, परसेंट मीन्स डिवाइड बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, रुपीज कितने हैं 2500, तो जो भी क्वांटिटी आएगी सब रुपीज में आएगी। 2 zeros से 2 zeros कैंसिल, 25 टू सा 50, 0, तो 500 रुपीज। सो 20% ऑफ 250 is equal to 500 rupees. Now next one is 75% means upon 100 multiply by 1 kg। अब यहां पर भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी हम यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं kg टू ग्राम्स। सो इट इज इक्वल टू 75/100 into 1000 ग्राम्स। यहां पर हमारे पास कैंसिल होंगे 2 जीरो से 2 जीरोस, 750 grams. So okay, now you can solve it. Now question number 5, find the whole quantity if 5% of this whole quantity is 600। हमने यहां कर दिया let the whole quantity is equal to x, so 5% of x is equal to 600, so 5/100 into x is equal to 600। यहां से हम x निकालेंगे तो 5/100 उधर जाकर क्या होगा 100/5, 100 ऊपर चले जाएंगे 5 नीचे होंगे। नाउ वी कैन सॉल्व, 5 1 5, 5 2 10, 5 0 का 0, तो 120 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000। सो आंसर विल बी 12,000। 5% ऑफ 12,000 इज 600। सिमिलरली इसमें भी हम यही करेंगे, लेट होल इज इक्वल टू होल क्वांटिटी इज इक्वल टू x, सो 12% ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 1080, सो 12/100 into x is equal to 1080, so x is equal to what 1080। 12/100 है यहाँ पर, उधर जाकर ये क्या होंगे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, पलट जाएंगे, तो हमारे पास होगा 100/12, 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 9 जा 108, 90, तो 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या नंबर आ जाएगा 9000। ओके, 40% ऑफ द होल इज 500, क्लियर। सो लेट होल हमारे पास क्या है, द होल नंबर इज x, so 40% of x is equal to what 500, so 40/100 multiply by x is equal to 500, so x is equal to what 500 into ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई और 40 नीचे डिवाइड। इट मींस जब हम इसको अनदर साइड लेके जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह यहाँ 100 डिवाइड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 10 से 10 10, 4 से 25 पे कैंसिल, 25 5 जा 125 एंड देन 0। इट्स यूनिट इज किलोमीटर, तो यहां पर भी इसकी यूनिट भी क्या रहेगी इन किलोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 70% ऑफ व्हाट इज 40 मिनट्स, सो लेट होल इज इक्वल टू x, so 70% ऑफ x इज इक्वल टू 14 मिनट्स, यहां पर मिनट्स हैं तो 70/100 into x is equal to 14, so x is equal to what 14 into 100/70। ये हर बार हम प्रोसेस कर रहे हैं कि ये जाकर यहाँ पर क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो रेसिप्रोकेट में हम क्या करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। 0 से 0, 7 2 जा 14, 2 से कन्वर्ट करेंगे तो 20, सो 20 का 70% क्या होगा 14, तो 20 मिनट इज द आंसर। Okay, now this is the question number 5, so you have to solve all the parts, all the questions जितने भी मैंने एक्सरसाइज के करवाए हैं और एक्सरसाइज के अलावा करवाए हैं, सभी क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करनी है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट।
So do your homework at time and send it to me regularly.